سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم يظلهم إلى الآن وإلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. صدق الله العلي العظيم. محترم شرکائے درنا، آپ کے جذبات کو میں سلام پیش کرتا ہوں. آپ یہاں کسی بندے، کسی تنظیم، کسی اس کی اعلان پر نہیں آئے. ہم سب یہاں کے علماء، یہاں کے علماء دین، سب کی کنسنس سے آئے ہیں، احتجاج ریکارڈ کرنے آئے ہیں. ایک مردود کے خلاف جس نے ہمارے وقت کے امام کے خلاف غلط زبان استعمال کی ہے، اور اس حوالے سے گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے، گورنمنٹ کو تنبیہ کرنے کے لیے، گورنمنٹ کو متوجہ کرنے کے لیے کہ وہ بندہ گرفتار ہو اور اس کا جو سزا بنتی ہے وہ سزا دی جائے. باقی کسی فرقے کے خلاف یہاں شیعہ سنی عرصے دراز سے دے رہے ہیں، بائن کی طرح دے رہے ہیں. یہاں ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور ہم ایک دین رکھتے ہیں، وہ دین نہیں ہے. اور دین کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، دین کے کچھ احکام ہوتے ہیں، اس پر عمل کرنا ہوتا ہے. چاہے ہمیں مشکل پیش آ جائے، چاہے ہمیں پریشانی، چاہے ہماری سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں نہ آ جائے. ہو سکتا ہے کچھ باتیں کچھ نوجوانوں کو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، تو ان کا سوال جواب کا ہم موقع رکھتے ہیں. جامع مسجد میں وہ جوان بیٹھے ہیں، ہم سے ایک سوال، کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس حوالے سے وہ سوال کریں، ہم انشاءاللہ ان کو مطمئن کریں گے. مطمئن نہ کر سکے تو پھر وہ آزاد ہیں جس طریقے سے وہ جس طرح چلتے ہیں. یہ جو ہم سمجھتے ہیں، جو دین کی ہم نے جو تعلیم حاصل کی ہے، اس تعلیمات کو ہم نے عمل کرنا ہے. یہ صرف زبانی تعلیم حاصل کرنا، عمل کچھ کریں، تعلیم کچھ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. جس طرح العالم بلا عمل کا شریر بلا سمجھ. عالم جو عمل کے بغیر ہے ایسا ہے جو درخت کے بغیر پھل کے. مسلمان جو ایسا ہے جو احکام معلومات رکھتا عمل نہیں کرتا ہے، تو اس کا بھی اسی طریقے سے وہ خالی درخت کے نہیں ہے. تو کوشش کریں آپ اپنے جذبات کا انداز شریعت اسلامی کے اندر لے کے کریں گے، اس سے باہر ہو کے نہیں کریں گے. یہاں گزرنے والے اگر کوئی ابھی شاہ صاحب کی طرف بھی یہی ہدایت ہے، شاہ صاحب ہدایت نہ بھی دے دیں، قرآن اور حدیث کی بھی یہی ہدایت ہے، ائمہ کی ہدایت ہے. اگر کوئی مریض ہے، پیشنٹ ہے، پوری دنیا میں یہ اصول ہے، ادھر سے وہ مریض چلا جائے، کوئی ہمیں پریشانی نہیں، اس کو جگہ دینا ہوتا ہے. یہ کچھ احباب اپنے علم سے زیادہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی وجہ سے معاشرے میں فساد ہوتا ہے. معاشرے میں جب علماء کو بولنے نہیں دیا جاتا ہے، جاہل کو بولنے کا حق ہے، اس معاشرے میں نہ عدل رہتا ہے، نہ انصاف رہتا ہے، نہ دین رہتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا ہے. اور صرف ایک ڈھانچہ رہتا ہے، اس ڈھانچے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. دیندار 5 کی ہو، یہ دن جو ہے لاکھوں اس کو فائدہ نہیں. مثلا آپ کو مثال دیتا ہوں، کیوں یہ حزب اللہ کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے؟ جو آج پوری دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے پاور کہاں سے ملی ہے؟ یہ دین سے ملا ہے، یہ احکام کی پیروی سے ملا ہے، یہ جذبات سے نہیں ملے ہیں، زبانی نعرے سے نہیں ملے ہیں. وہاں 4000 ہوں گے، 4 لاکھ کہتے ہیں، یہاں تو 20 کروڑ ہیں اور 5 کروڑ ہم شیعہ ہیں. کیوں نہیں نکلتا ہے؟ اس میں ہمارے اندر کی خرابی ہے. ہم بھی احکام دین پر دعویٰ کرنے کے لیے تیار نہیں، نعرے بہت لگاتے ہیں، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
हाँ, वो जो मलूम इसके खिलाफ एहतजाज है, उसमें सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, शिया भी उसके लिए लानत करता है, सुन्नी भी लानत करता है, हुकूमत भी लानत करती है, हम सब भी लानत करते हैं। कोई शक नहीं है। और अगर उसकी मंजिल इंशाल्लाह जहाँ है वो चला जाएगा, वो इमाम के हाथ से नहीं बच जाएगा। जब उससे बड़ा मलूम आजम तारिक जिसने इमाम की शान में गुस्ताखी की थी, तो इस्लामाबाद के अंदर बड़ी सिक्योरिटी के अंदर उसको वासिल जहन्नम किया था। के इसको नहीं गिरफ्तार करती है तो हम उसको इंशाल्लाह पकड़ना हमें आता है। हम रहते हैं तो हम उसको खोल ले लेंगे। अगर गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी अदा करती है, उसको सजा देती है तो ठीक है, यहाँ के मुल्क के हिसाब से निजाम के हिसाब से भी सजा वक्त उसको देती जाए। नहीं तो हम सजा देने के लिए तैयार है इंशाल्लाह। उसके लिए तैयारी की जरूरत है, उसके लिए सामने आने की जरूरत है, उसके लिए जज्बात की जरूरत है। ये जो है जवानी तुम्हें इन चीजों के बाद फिर इमाम की शान देखिए, इमाम जमाना मतलब किसी को कोई इख्तियार नहीं है। हत्ता कि शिया सुन्नी इस्लाम के जितने फिरके हैं सब इमाम महदी के इस्लाम से सब मुतफिक हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं करता है। बल्कि गैर मुस्लिम भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि एक मुसल्ले आने वाला है, इस्लाह करने वाला आने वाला है, जहाँ जुल्म होगा जुल्म खत्म करके आदम को इंसाफ को वहाँ बर्पा करेगा। सब इसके मुतकिल हैं। तो लिहाजा ये जो गवर्नमेंट है, इंतजामिया है, ये अपनी रास्ता कर रही है, काम कर रही है, फुटिया दिखा रहे हैं। हम भी उनके साथ रास्ते में, गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है, हमारा भी हक बनता है हम भी अपना काम करें, हाथ में अपनी जज्बात दिखाएं, इसलिए मैदान में आए हैं। लेकिन ये हमारे अजीज ने तो बता दिया जी, हम यहाँ 24 घंटे रह सकते हैं। ये 24 घंटे रहने मैं अभी देख रहा हूँ, यदि खताब के दौरान में कितने बैठे हैं, लेकिन 24 घंटे रहना फायदा हो गया तो हम 24 में 48 घंटे रहेंगे। जरूरत के की जरूरत है, इतना पानी पीना है, इतना खाना खाना है, जरूरत से ज्यादा नहीं, न जरूरत से कम। हाँ, यहाँ एहतजाज करना है, एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। कायदीन का जिस तरीके से हुक्म मुझे हुआ है वो मैंने चलाना है, किसी को हुक्म नहीं हुआ है। जो कहता है कि जी हमने 24 घंटा कर दिया, 48 घंटा कर दिया, वो भाई अपने जज्बात में कह देता है, तो उसके जज्बे को हम सलाम पेश करते हैं। 48 घंटे रहने का उसके पास ताकत तो है, अल्लाह ने दिया है माशाल्लाह। लेकिन ऐसा नहीं है, हम मरकजी क़यादत के साथ मुंसलिक हैं और उन्होंने जैसे हमें डायरेक्शन दिया है उसी हिसाब से हम चलते हैं और इसी पे हम चलते रहेंगे। क्योंकि जिसका ताल्लुक मरकज से, क़यादत से, उलमा से नहीं है, यहाँ मसाइल हल नहीं हो सकते हैं। आज तक यही मसाइल है, वो कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है। इस तरह से जब से हमारी हालत है वहीं से आज तक यही खड़े हैं। आप इंशाअल्लाह उलमा के साथ मुंसलिक हैं। उलमा जानते हैं जिन्होंने जाकर अपनी जिंदगी सर्फ की है इस मंजिल के लिए, दीन के लिए। आज भी हम यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम कराची में उससे बेहतर जो है हमें आमद भी है, सूरत भी मिलती है। हम यहाँ सिर्फ दीन की खातिर आए हैं, दीन का हुक्म है, दीन को समझाने के लिए आए हैं। आप लोग इसको नहीं समझे, हमारी बात को गलत। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ इससे बड़े करते हैं, उन धर्मों में बड़े समझा, लेकिन हम कोई करने वाले नहीं हैं। तो ये समझता है, गलत समझता है। बाकी टेंशन के तहत हम करेंगे इंशाअल्लाह। बस मैं यही कहूँगा, आपके इस इज्तिमा के तवज्जुह से मैं ज़मीनी इंतजामिया से, गिरगित बल्तिस्तान के इंतजामिया से जो है उनको मुताबिक करता हूँ, तंबीह करता हूँ। और अगले जो है 24 घंटे के अंदर अगर उन्होंने वादा किया है हम करेंगे, अगर वादे के साथ नहीं किया तो हमारा एहतजाज अभी जो है वक्त के साथ है, ब्रेक के साथ है, दिन को है, तो फिर रात को करने की जरूरत पड़ेगी। आप साथ देंगे इंशाल्लाह, तो यहाँ हम आ जाएंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह जो है इस जालिम को गिरफ्तार किया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये माह रजब की है, इबादत का वक्त की है, लोग बहुत सारे रोजे से भी हैं। और यहाँ अभी इतना देर में इसको आप सबको ज्यादा वो तकलीफ देना नहीं चाहता। आपके इलाके भी है, आपने जाना भी है, आना भी है, तो आपको यही में मसाजिद से पहले मसाजिद की मंजिल की तरफ मैं जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा। आपको भी मोहम्मद की 28 रजब का दिन है। हम मुहर्रम में 28 रजब के हवाले से जिक्र करते हैं। 28 रजब को क्या वाक़या हुआ था? 28 रजब को इसी दीन को बचाने के लिए, देखें ईमान कौन होता है, दीन कितना बड़ा होता है, नमाज कितनी बड़ी है, रोजा कितना बड़ा है, हज कितना बड़ा है। इतना बड़ा है कि इमाम अपनी जान कुर्बान करते उसको बचाने के लिए। इमाम हुसैन ने
मदीने में कोई तकलीफ नहीं की। दीन कहा कि मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा का दीन मिट रहा है, उस दीन को बचाने के लिए मैं निकला हूँ। तो लिहाजा रवानगी इमाम मुस्लिम के हवाले से चंद कलमा मसाइल के लिए बोलूंगा, लेकिन इससे पहले हिदायत ये है, क्योंकि आज का आप सब ने जो है बरोकत 10:30 बजे आ गए, कल के लिए यही फलान आपसे गुजारिश करूंगा, आप 10 बजे इंशाल्लाह तमाम आज जो आए इससे ज्यादा तादाद में, डबल तादाद में आप आ जाएं, आप 10 बजे आ जाएं और इंशाल्लाह फिर इसी तरीके से नमाज के बाद हमारा इज्तिमा रहेगा। जितना मालूम थे हो सकता है डबल करना पड़े, रात को करना पड़े, फिर लीडरशिप से राबता के उसी हिसाब से हम आगे चलाएंगे। मैं 2-4 जो है मसाइल के, चूंकि 28 रजब के हवाला हो, मजलिस होती है, बर्पा होती है, चलो इसमें मसाइल के जगह हम नाज करते हैं। और मैं फिर आज करता हूँ, आप में किसी को कोई बात नागवार गुजरी है तो मैं मदद चाहता हूँ, आपके जज्बात को सलाम करता हूँ, लेकिन जज्बात को होश के दामन में देखें। हमें ये सबक कहाँ से मिला? करबला से मिला है। हजरत अब्बास अली को कोई शिकस्त दे गया मैदान में, कहीं तारीख मिलती है अली को किसी ने शिकस्त नहीं दे सका, न दे सकता था, सिर्फ शहादत सजदे में गुजर किया ना। जब अली को सजदा जो है शिकस्त नहीं दे सकते हैं तो अब्बास को भी कोई शिकस्त नहीं दे सकता था। अब्बास के करीब आने किसी की वजह, मगर इमाम मुस्लिम ने कहा अब्बास खामोश रहना, तो तलवार हो गई अब्बास में। दीन की जो है ताकत इसी में थी, खामोश रहने में थी। इमाम की इताअत में दीन होता है। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम 28 रजब है, उससे पहले क्या हुआ कि हाकिम इस्लाम ने खत लिखा गवर्नर मदीना को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वहां पर या तो मेरी दया ले रहे या जो है गिरफ्तार करे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अमीनात को वहीद की तरफ से, गवर्नर की तरफ से बताया और कहा कि आपको जो है गवर्नर साहब दरबार में बुलाते हैं। इमाम इल्म गैर जानते हैं, इमाम आगाह होता है हालात से, किस बात के लिए बुलाया, क्यों बुला रहा था। मगर इमाम ने कहा ठीक है मैं रात को आ जाऊंगा, और रात को जाने के लिए तैयार हुए तो इमाम की चाहने वाली बहन ज़ैनब ने कहा भाई हुसैन आप अकेले नहीं जाएंगे, आपके साथ सिपाही जाएंगे। अब्बास मौजूद है ना, अभी अली अकबर मौजूद है, शहजादा कासिम मौजूद है, सारे 18 बनी हाशिम तैयार हो गए, मौला हुसैन के साथ चले गए। दरबार में गवर्नर में पहुंचे, एक मरतबा इमाम अलैहिस्सलाम जाना चाहते हैं, कहा कि आप बुलावा मुझे आप सबको अंदर ले जाने की, देखो एक काम सीखो इमाम से। जितना कहा दरबार में मुझे बुलाया है, आप सबको बुलाया नहीं, आप मेरी हिफाजत के लिए आप बात तशीफ रखें। इमाम अकेले अंदर गए, इमाम से बात हुई, बातों में उसने यही कहा कि हाकिम साहब का तज़किरा किया, मौत का तज़किरा किया और यजीद मरऊन की जो है हुकूमत का जिक्र किया और बैयत का तकाजा किया। तो इमाम हुसैन साहब ने फरमाया मिस्ली ला युबाई मिस्ला, मुझ जैसा कभी यजीद जैसे की बैयत नहीं करेगा, क़यामत तक बैयत नहीं करेगा। बस ये कहना था। वो थोड़ा नरम दिल भी था, उसने कहा ठीक है कल दिन में बात होगी इस हवाले से। कहा ठीक है, मलिक मरवान जालिम तरीन खबीस तरीन जो उसके साथ था, उसने कहा अगर अली हुसैन को जाने दिया या बैल ले ले या सर ले ले, बस सर की बात की। एक मरतबा ये आवाज अब्बास अलमदार तक पहुंची, अब्बास अलमदार तक पहुंची, दरवाजे को धक्का दिया, आज सवाल किया मौला आप बताओ आपके लिए किसने सर की बात की थी। इमाम चाहते तो अब्बास को अलग कर सकते थे, अब्बास चाहते इमाम के हुक्म के बगैर उसका सर कलम कर सकते थे। इमाम ने कहा अब्बास की जंग का मौका नहीं है, आपने सबक के मजलिस से किए छोड़िए। अब्बास चूंकि इमाम की आवाज से लबेक होता है, वापिस हो गया। अगर वो खामोशी से आ रहा है और रोता जा रहा है। किसी ने सर की बात की, मैं उसको मार नहीं सका, जवाब नहीं दे सका, बड़ा पड़ता, लेकिन काफी देर हो गई थी। शहजादी ज़ैनब भी बड़ी परेशान थी, कभी खेलने से बाहर निकलती थी, कभी अंदर आती थी, आवाज देती थी भैया हुसैन, मेरे भैया के अल्लाह सलामत रखे, और दुआएं हो रही थी। एक मरतबा मौला हुसैन दरबार में आया, दरबार से वापस आया, बीवी ने सलाम किया और कदमों से लिपट के रोने लगी। मौला हुसैन ने कहा मेरी
کی ہے, بیمار ہے, اس کا نام لسٹ میں نہیں لکھا گیا تھا. شہزادی زینب جو ہے اپنے شوہر سے لیکن شریعت کہاں پر پابند دیکھو کہاں پر شریعت کی پابندی ضروری ہوتی ہے. اگر چاہتے تو حسین امام ہو سکتے, زینب کو کہہ سکتے تھے چلے میرے ساتھ میں امام ہو سکتے نا, امام ہو سکتے میں اپنی جگہ میں ہوں, مگر آپ شوہر کے تابع ہیں, شوہر سے پہلے اجازت لے لو زینب پھر چلے. شہزادی زینب گھر میں جا کے غصے میں کہہ سکتی ہوں میں جا رہی ہوں نہ, یہ شریعت جہاں سے نکلتی ہے وہ گرانا ہے. لہٰذا گئی شوہر کے پاس کریم نے جو ہے گمبھیر حالت میں بیٹھی تو ایک مرتبہ پوچھا بیوی آپ نے اس انداز میں تک نہیں بیٹھی تھی, آج جو ہے اس انداز میں دروازے کے پاس کیسے بیٹھی ہے. یا عبداللہ میرا بھائی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے, میرا بھائی کے ساتھ میری ایسی محبت ہے, اگر آپ نے مجھے اجازت نہیں دی تو میں نہیں جاؤں گی, مگر ادھر سے حسین نکلے گا, ادھر میرے گھر سے زینب کا جنازہ نکلے گا. بس دارو عبداللہ نے کہا بیوی آپ بھی جائے. بس 28 رجب کی رات کو ایک مرتبہ سواری آنے لگی, ایک سواری آتی ہے, اس سواری کا وارث ام لیلا جب سوار ہونا چاہتی ہے, علی اکبر جو ہے اپنی ماں کو پکڑ کے سوار کراتے ہیں, شہزادہ قاسم نے ماں کو سوار کراتے ہیں, ایک سواری سوار ہوتے گئے. لیکن ایک مرتبہ جب زینب امینہ کی باری آئی, عباس علمدار بال چھپنے کے آواز الحجاب الحجاب, مدینے والے اپنے گھروں کے اندر رہنا, اس دن کریم کی بیٹی زینب باہر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ زینب سلام اللہ علیہا بھی سوار ہوئی. ابھی ایک قافلہ جانا چاہتا ہے, تھوڑا سا چلا تھا پیچھے آہٹ محسوس ہوئی, کیا دیکھا فاطمہ سہرا روتے ہوئے پیچھے آ رہی ہے. ایک مرتبہ کہا بابا مجھے نہ لے جائے, مگر 6 مہینے کا اصغر میرا بھائی تھوڑی دیر کے لیے میری دامن میں دیجیے, مگر 6 مہینے کے اصغر کے لڑکین کی ضرورت پڑتی ہے تو امام حسین پرواہ نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بہن کے دامن میں علی اصغر دے دیا, اصغر اپنی بہن کے دامن میں آیا. اب جو ہے ماں آ گئی, اب جو ہے دوسرے جو ہے جانے والے آ گئے. اصغر نے بہن کی دامن نہیں چھوڑا, مگر یقین مانیے اس 6 مہینے